वेलकम बैक। और आपको लिए चलेंगे पीएफ एकेडमी असगर खान, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड इस वक्त जारी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पासिंग आउट परेड की इस तकरीब में शरीक हैं और वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। पीएफ एकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड की ये तकरीब, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इस तकरीब में शरीक हैं। पीएफ एकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड इस वक्त जारी है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शरीक हुए हैं। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। रसालपुर पीएफ एकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शरीक हुए हैं और उन्होंने परेड का मुआयना भी किया है। मनाजिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रसालपुर से बराह रास्त पीएफ एकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड इस वक्त जारी है। Ladies and gentlemen, now the presidential salute will be presented. All are requested to rise and join the parade for the national anthem. All those in uniform are to salute. Award of Quaid-e-Azam banner to the champion squadron. The Quaid-e-Azam banner carries historical significance. It was awarded to this academy on 13th April 1948 by Father of the Nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, on his historic visit to this institution. The Quaid-e-Azam banner is awarded to the squadron which performs consistently outstanding throughout the semester in all spheres of training.
May I request the worthy chief guest to award Quaid-e-Azam banner to the champion squadron. Ladies and gentlemen, champion squadron for the semester is number 2 squadron. Thank you, sir. Squadron George, flow! Punch! Ladies and gentlemen, now the graduating cadets of 148th GDP, 94th Engineering, 104th Air Defense, and 130th Combat Support courses will fall out and form up in front of the dais. Short!
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اب تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئیں گے ایویشن کیڈٹ علی اسور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
PF एकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयर फोर्स की पासिंग आउट परेड जारी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मुख्तसर फैसला शाम 5 से 5:30 बजे के दरमियान सुनाया जाएगा। ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा इस केस का शॉर्ट ऑर्डर आज ही सुनाया जाएगा। शॉर्ट ऑर्डर के बाद तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। ये कहना है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि मुख्तसर फैसला शाम 5 से 5:30 बजे के दरमियान सुनाया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद जानेंगे। हुसैन अहमद चौधरी बताइएगा समाअत में मजीद क्या कार्रवाई हुई आज? जी देखिए, साइफर केस में चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मुकम्मल हो गई है और फैसला महफूज कर लिया गया है। चेयरमैन PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी थी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से भी जवाब जमा करवा दिया गया था और बताया गया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की जज की जो तैनाती हुई है वो हाई कोर्ट से राय ली गई थी और उसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो तब भी ये राय ली गई थी। गुज़श्ता रोज भी रजिस्ट्रार को हाई कोर्ट ने इन पर्सन तलब किया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन ने समाअत की है और अदालत ने इंटर कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया है और जस्टिस मियां गुल ने कहा है कि शॉर्ट ऑर्डर आज ही शाम तक सुनाया जाएगा। शाम 5 बजे से 5:30 के दरमियान मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा और तफसीली फैसला बाद में जारी। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी तफसीलें आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट की चैरिटी रजिस्ट्रेशन में ताखीर और नई ट्रस्ट एक्ट की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक केस में हुक्म पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत ने एडवोकेट जनरल को अलकादिर ट्रस्ट की दोबारा रजिस्ट्रेशन की दरखास्त पर 2 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर लेबर एंड इंडस्ट्रीज के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, ये कौन शख्स डायरेक्टर लेबर तयनात है, इसको इस सीट पर नहीं होना चाहिए। अक्टूबर से कहा हुआ है इनकी दरखास्त पर फैसला करे, दरखास्त को मुस्तरद करे या मंजूर करे, जो भी है फैसला करे। आपने पाकिस्तान को ऐसे चलाना है, ये क्या कि अगर ऐसा किया तो कोई नाराज ना हो जाए, ये क्या बात है? डायरेक्टर लेबर पब्लिक के पैसे खाता है, तनख्वाह लेता है या नहीं, वो तनख्वाहें पब्लिक के पैसों की होती है ना। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि रिमाइंडर भेजा हुआ है, 2 रोज में फैसला कर देते हैं। अदालत ने अहकामात के साथ केस अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर गुल और सईद अजमल को कौमी क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। उमर गुल फास्ट बॉलर्स जबकि सईद अजमल स्पिनर्स के कोच होंगे। शहजाद मलिक से मजीद जानेंगे। शहजाद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी हाँ खालिद, गुज़श्ता रोज चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो टीम का ऐलान किया था और अभी टीम मैनेजमेंट का पूरा ऐलान नहीं था हुआ, लेकिन आज उमर गुल को जो है वो फास्ट बॉलिंग कोच और सईद अजमल को स्पिन बॉलिंग कोच जो है वो मुकर्रर किया गया है, जबकि मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर पहले से मुकर्रर हैं। तो अब ये टीम मैनेजमेंट होगी। नवीद अकरम चीमा को जो है वो टीम मैनेजर मुकर्रर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रही है। 100 इंडेक्स ने 555 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 57,633 पॉइंट्स की सतह को छू लिया। इंडेक्स गुज़श्ता जुमेरात को 57,397 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। माहिरीन का कहना है मार्केट में 2 दिन के करेक्शन के बाद एक बार फिर सरमायाकारों का एतमाद देखा जा रहा है। डीरबाला में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिसने बानी एमकेएम को गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज एमकेएम की बागडोर उसी के हाथ में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं एमकेएम पाकिस्तान कराची में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से परेशान है। जिनको वो कच्चा कह रहे हैं उनसे मजीद ताकतवर लोग पीपल्स पार्टी में आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो शमूलियतें हो रही हैं उसके बाद इतना सटपटा जाना एमक्यूएम का, ये इस बात को साबित करता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहर में मकबूलियत है उससे परेशान है। आपने तो ये झूठी खबरें लगाई कि किसी के घरों पे आप जो है वो लोटे लटका रहे हैं। हम झूठी खबरें नहीं लगाएंगे, हम कठपुतलियां बना के आपके घरों पे लगा देंगे कि आप कठपुतलियां हैं। आप इशारों पे चल के किसी तरह से शहर पे कब्जा करना चाहते हैं
وہ نہیں ہوگا. جو سو کالڈ ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کی باغ دوڑ جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے, اور اس کے ہاتھ میں ہے جس نے الطاف حسین کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گالیاں دینے میں. مصطفیٰ کمال صاحب یا ان کے جو آگے پیچھے کے لوگ ہیں لٹرلی ایم کیو ایم پاکستان کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. جن کو وہ کچرا کہہ رہے ہیں ان سے اور طاقتور لوگ جو ایم کیو ایم پہ بازار میں بیٹھے ہوں گے وہ بھی آئیں گے واپس ادھر. ایم کیو ایم پاکستان کی نہیں کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا ہے. یہ میلین سمیت دیگر تمام لوگوں سے جو اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. مردہ گھوڑا کبھی زندہ نہیں ہو سکتا. اگر ہاتھ رکھنا ہے تو کسی زندہ گھوڑے پہ رکھو تاکہ اس کو آگے بھی بڑھا سکو. ایم کیو ایم مزید پریشان ہوگی, مزید بے چین ہوگی. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے اے آر وائی نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال سے ملاقات کی. آصفہ بھٹو نے سلمان اقبال سے ان کی صاحبزادی سمیہ سلمان کے انتقال پر دلی تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا. آصفہ بھٹو زرداری نے مرحومہ کی مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی. کراچی میں ہونے والی ملاقات میں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری اور شرجیل انعام میمن بھی آصفہ بھٹو کے ہمراہ تھے. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن. سیکیورٹی فورسز نے مختلف مقامات پر آپریشن کر کے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا, جبکہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاک فوج کا جوان شہید ہو گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. جنوبی وزیرستان کے علاقے کوٹ اعظم میں بھی کامیاب آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد انجام کو پہنچا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود برآمد کر لیا گیا. ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. علاقے میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے. دوسری جانب شمالی وزیرستان کے علاقے میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 26 سال کا سپاہی شاہزیب شہید ہو گیا. اے آر وائی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے اے آر وائی نیوز.